أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور ذوالحجہ کے ان خاص دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی اور جو وراثت ہے، جو ہم اس کو ہر روز جو چیزیں ان کی ڈیٹیل سے سیکھ رہے ہیں، گہرائی میں جا کے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوں گی۔ تو آج ہم انشاء اللہ تعالی جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے قربانی اسماعیل علیہ السلام اور تربیت اولاد۔ ہم جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر انشاء اللہ تعالیٰ جو تربیت کے جو پہلو اس پہ ہم بات کریں گے، اور آج ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں ٹائم دے گا، اور اس کو تھوڑا سا ہم آغاز کرتے ہیں کہ مختلف قومیں جو ہیں، قوموں کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ مختلف طرح کے حج کرتے ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر بھی پلگرمیج ہے، جوڈائزم کے اندر بھی ہے، اسی طرح ہندو جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں، بنارس جاتے ہیں، وہاں پر ان کا ہوتا ہے پلگرمیج ہوتا ہے، اور ادھر وہ گنگا میں جو نہاتے ہیں۔ اسی طرح ہی سکھ جو ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے پلگریمیج، کچھ ان کا پلگریمیج کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی وہ آتے ہیں، اور یہاں پر بھی اپنے ان کے جو یہاں پر گردوارے ہیں اس میں وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حج کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق بھی حج کرتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ میچز دیکھنے کے لیے، ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے، کوئی گیمز، کوئی سپورٹس، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، خوب پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے بھی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، مثال کے طور کے اوپر ایپل کا آئی فون اگر نیا نکلتا ہے تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اور اس کو پہلے لینے کی جو ہے ان کے اندر خواہش ہوتی ہے، جیسے کسی بہت ہی کسی مقدس چیز جو ہے اس کو انہوں نے تھامنا ہو۔ اور اسی طرح ہی کچھ لوگ مشہور شخصیات کے گھروں کی زیارتیں کرتے ہیں، چاہے وہ دینی ہوں یا چاہے وہ ویسے ہی کسی اور وجہ سے مشہور ہوں۔ تو حج ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی حج کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سب سے عظیم حج، حج اکبر کی بنیاد رکھی، تاکہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو پکار ہے، کسی اعلیٰ ہستی سے جڑنے کی خواہش ہے، اس کو جواب دیا جائے۔ یہی حج کا اصل مقصد ہے، اپنے سے بڑے کسی وجود سے جڑنا، کسی ایسی حقیقت کا بننا، حصہ بننا جو آپ سے بڑھ کر ہو، کسی ایسی جماعت سے وابستہ ہونا جس سے آپ کو تعلق محسوس ہو۔ یہ شعور میں وسعت لانے کا ذریعہ ہے، اور یہ سب کچھ حج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ عظیم ترین حج ہے جو انسان کی جو روح کی بھوک ہے اور اس کی پیاس ہے اس کو سیراب کرتا ہے۔ اور یہ حج جو ہے یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ کی طرف رہنمائی فرمائی، اور فرشتوں نے انہیں کعبہ کی جگہ کی گرد طواف کرنا سکھایا۔ نوح علیہ السلام کے سیلاب میں اس کی نشانیاں مٹ گئیں، اور پھر کئی ہزار سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ کی عمارت کا باقاعدہ قیام ہوا۔
यही पहला घर है जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए, इंसानों के लिए बनाया गया, और इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कुरान में इसको बैतुल अतीक भी कहा गया है। तो कुरान में अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ खानदानों की दास्तानें बताता है। और कुरान के शुरू में जिस तरह सूरतुल बकरा में हम बनी इसराइल का जिक्र देखते हैं, ये भी एक खानदान है। फिर आले इमरान, अल मायदा और मरियम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद इमरान का जिक्र है, उनके खानदान का जिक्र है। फिर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के बारे में पढ़ते हैं, हम फिरौन के खानदान का भी जिक्र देखते हैं। ये सब खानदान है। और हकीकत यह है कि दुनिया का निज़ाम जो है वो खानदानों के जरिए ही चलता है। आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान की कुर्बानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपके खानदान का क्या मकसद है। कोई जिंदगी का आपके खानदान के कोई मिशन है। जिस तरह पुराने जमाने के बहुत से खानदानों का कोई निशान होता था जिसको कोट ऑफ आर्म्स कहते थे, कोई मोटो होता था। क्या आज आपके खानदान का कोई मिशन है? जिस तरह बाज लोग खिदमत इंसानियत का फरीजा अंजाम दे रहे होते हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं, कहीं कोई साइंटिस्ट हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई हर्बोलॉजिस्ट होते हैं, और इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज लोगों ने रखी हुई हैं। तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। फिर यह है कि कुर्बानी के मौजू पर हम आज गौर व फिक्र करेंगे, और वो कुर्बानी जिसकी हम यकम जिलहिज्जा से हम उसको वाकयात जो से रिलेटेड हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और उनके अहल से, हम उसको एक गहरी नज़र से देखते हुए आ रहे हैं। और आज भी हम उस पर मजीद एक गहरी नज़र डालेंगे और अपने लिए लर्निंग के जो असबाक हैं उनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यही वो दिन है जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं, जब वो अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, ईमान और तवक्ल की अलामत के तौर पर। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों में से एक बड़ी कुर्बानी ये थी कि उन्होंने अपने वतन को छोड़ा। आज भी दुनिया में ज्यादातर जंगें जमीन के लिए ही होती हैं। लोग जमीन से इतने वाबस्ता होते हैं कि उसके लिए खून बहाने को भी तैयार हो जाते हैं। जमीन जिससे हमें पैदा किया गया, जिसमें हमारे लिए हर किस्म की जरूरियात हमारी उससे वाबस्ता है, हम इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूं। तो सवाल ये है कि जिंदगी में तंगी या मसले आए तो क्या हम अल्लाह के लिए हिजरत करते हैं? क्या हम अपने रब के लिए छोड़ सकते हैं वो सब कुछ जिससे हम जुड़े होते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में हमें हदीस नीयत से आगाह किया, और हम इसको पहले भी असबाक में पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर लोग दुनियावी फायदे के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए, या अगर औरत है तो मर्द से शादी करने के लिए हिजरत करते हैं। तो नीयत की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। फिर ये इनकी पहली अजीम कुर्बानियों में से एक थी अपनी जमीन छोड़ना, अपने रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करना। जबकि हम में से बहुत से लोग अपने खानदान की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करते हैं या फिर अपनी असल फितरत के खिलाफ चले जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। वो अपने बाप, अपने चचा, अपनी कौम, अपने कबीले की मोहब्बत, इज्जत को अल्लाह के लिए कुर्बान करने पर आमादा थे। इस जात के लिए जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा बाकी रहती है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जो जात है, जो हर अमल का बेहतरीन बदला देने वाली है, वो अल्लाह ताला की जात है। फिर हमारी जिंदगियों में मौजूद बहुत से बुतों में से खानदान, कौम, बरादरी, कल्चर और वो रिवायात जो किसी न किसी बाज दफा सोसाइटी का या माशरे का या खानदान का हिस्सा होती हैं, और ये बहुत बड़ा बुत है। जब हम एक नस्ल एक नस्ल जब किसी भी खौफ या किसी दिली लगाव की वजह से किसी को उस जगह पर बिठा देती है, बड़ा बना देती है उस तरह से, और उसका बुत बना देती है, तो फिर क्या होता है? अगली नस्लों तक जाते जाते वो एक अकीदा बन जाता है। और हमारे यहाँ ये लफ्ज जो अकीदत जो है, जो अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। फलां को फलां से बड़ी अकीदत है। ये अकीदत असल में क्या है? असल में ये अकीदा है।
और जब अकीदा बिगड़ जाता है तो सोच बिगड़ती है, और फिर अमल, और फिर उसके बाद आखिरत भी बिगड़ जाती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा ने भी कुर्बानी दी, बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खुसूसी रफाकत को कुर्बान किया, जब उन्होंने अपनी बांदी हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके निकाह में दे दिया ताकि वो बीवी के दर्जे पर फाइज हो जाएं और उनके बराबर हो जाएं। सारा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जमीन और अपने खानदान को अल्लाह के लिए छोड़ा, और वो एक नेक और साले खातून थी। और हाजरा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी अपनी जमीन छोड़ी, उन्होंने अपने शौहर की सोहबत में रह के अपनी जमीन और तहफ्फुज को अल्लाह के लिए कुर्बान किया, और उनके लिए ये काफी था कि ये अल्लाह का हुक्म है। यही वो सवाल है जो एक मोमिन के दिल में होना चाहिए। तो बस मोमिन का दिल मुतमिन हो जाता है, सुकून पा लेता है कि फिर हमें अल्लाह जाया नहीं करेगा। तो जैसा कि इस कोर्स के आगाज में भी बात हुई थी कि हम ईमान के बारे में सीखने जा रहे हैं, सच्चा ईमान क्या होता है, वो कैसा होता है, अल्लाह पर हकीकी भरोसा कैसा होता है। ये अकीदे की क्लास नहीं है, बल्कि हम अमली ईमान जो है उसके बारे में सीख रहे हैं। ईमान वो है जो अमल में जाहिर हो। जब बंदे का दिल अल्लाह की तकदीर पर मुतमईन हो जाए, ये अमली अकीदा है। और अल्लाह हर एक के लिए अलग मंसूबा रखता है। वालिदैन अक्सर अपने बच्चों के लिए मंसूबे बनाते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, किधर जाएंगे, कैसे, कहाँ पर उनकी शादी होगी, वगैरह वगैरह। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर ने उनके लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया होगा? जरूर बनाया होगा कि ये लड़का बड़ा होकर बुत तराशेगा, खानदान का कारोबार संभालेगा। मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इब्राहिम का लफ्सी मतलब जो है ना, कौमों का बाप है। लफ्सी मतलब इब्राहिम का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नाम वाले को उसके नाम का एक हिस्सा जरूर मिलता है। तो यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम ये जैसा था, उसका हिस्सा उनको भरपूर मिला। यानी कि वो कौमों के बाप बने। लेकिन अगर वो अपने छोटे से शहर में ही रहते, बुत तराश ही बने रहते, तो कभी भी कौमों के बाप ना बन सकते। तो अल्लाह का मंसूबा आपके लिए आपकी असल सलाहियत तक पहुंचने का रास्ता बताता है। मगर इसके लिए वो जगहें, वो ताल्लुकात छोड़ने पड़ते हैं, वो बुत गिराने पड़ते हैं जो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सिर्फ अपने खानदानी मंसूबे तक अपने आप को महदूद रखते हैं, और आप इस मंसूबे को नजरअंदाज कर देते हैं या रद्द कर देते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए तैयार किया है, वो मंसूबा जो बाज लोगों के दिल में बचपन से ही रखा गया है, तो आप कभी अपनी मुकम्मल सलाहियत को, अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप हमेशा एक छोटे से दायरे में महदूद रहेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी कुवत और वो सारी सलाहियत जो है ना, वो मौजूद रखी होती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। अल्लाह ताला आपको अजमत देना चाहता है, लेकिन अल्लाह की बादशाही में अजमत आजिजी और इनकसारी से हासिल होती है। अल्लाह के नजदीक अजमत उन लोगों के लिए है जो उसके हजूर आजिज हुआ होते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें एक बेहतरीन मिसाल दी कि एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ कैसा होना चाहिए। वो अपने वालिद की रहनुमाई को कबूल करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा इस्माइल जैसा हो। मगर सवाल यह है कि क्या हम खुद इब्राहिमी सिफात रखते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें ख्वाब सुनाते हैं, मगर वो ख्वाब सुनाने की बजाय बेटे से, हुक्म सुनाने की बजाय बेटे से मशवरा करते हैं। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और बच्चे से दीन का काम कैसे करवाया जाए। हम में से किसी को भी इस हुक्म से सख्त हुक्म नहीं दिया गया। हमारे दीन में ऐसा कोई हुक्म नहीं है जिस तरह का हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। यानी उस वक्त वो हुक्म तो शरी हुक्म था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, वो शरीयत थी उनकी, और वो हुक्म जो उनको दिया गया। क्या हमारे बच्चे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरी हुक्म के ऊपर समेना व अताना करते हैं? हालांकि अल्लाह का हुक्म इनके पास था, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास था, वो एक नबी थे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया और उसकी राय को सुनने को अहमियत दी। याद रखिए, हमारे बच्चे हमारे गुलाम नहीं हैं।
और वो कोई बे हकीकत और बेकार किस्म की मखलूक भी नहीं है जिन्हें सिर्फ हुक्म मानना है और चुप रहना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के हुक्म को खुश दिली से कबूल किया, क्योंकि उनको अल्लाह की पहचान थी कि मेरे वालिद की जुबान से जो हुक्म निकल रहा है वो असल में अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने फौरन अपने आप को सुपुर्द कर दिया। तो ही दोनों ने कुर्बानी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने पर आमादा थे। कभी आपको भी सच्चाई, अदल और हक के लिए अपनी कोई चीज कुर्बान करनी पड़ती है? अपनी इज्जत, शोहरत, मुकाम, जब वो लम्हा आए तो वही आपका इस्माइल होगा। याद रखें, आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह किसी को ऐसी सूरत में डाल दे तो अल्लाह से दुआ करें कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह हौसला, ईमान अता फरमाए जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तो ईद उल अजहा पर हम जो कुर्बानी करते हैं, जिसे अल अदहिया कहा या कुर्बानी कहा जाता है, चाहे वो ऊंट, गाय, बकरी, दुम्बा हो, इस कुर्बानी का मकसद जो है वो कुर्बानी का जज्बा है, शौकियां बिखेरना नहीं, बल्कि अपनी महबूब चीज को अल्लाह के लिए छोड़ना है। और जिंदगी में कुर्बानी के बेशुमार लम्हात और मौके आते हैं, और ये अल्लाह के करीब होने का अमल है, अल्लाह से ताल्लुकात बढ़ाने का। लोग कहते हैं दर हकीकत आपके नफ्स की कुर्बानी की अलामत होती है ये, कि हमारे दौर के बुतों में से जिस तरह एक बुत है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईगो, अना, और उसको क्या कहते हैं, एजिंग गॉड आउट। उन्होंने इसके लफ्ज का ये मतलब निकाला है उलमा ने, कि अल्लाह को अपनी जिंदगी से, मंसूबों से, ख्वाहिशात से, मामूलात से निकाल देना, ताकत, माल, असर और रसूख को अल्लाह से बड़ा समझ लेना। और हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस रवैये से बचा के रखे, लिहाजा अपने नफ्स को कुर्बान करना। आप देखिए, हाजर अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हर एक ने एक ऐसी चीज की कुर्बानी दी जो उन्हें बहुत अजीज थी। अगर आप किसी ऐसी चीज को कुर्बान करते हैं जिससे आपको मोहब्बत ही नहीं, जिसके जाने से आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती, वो कुर्बानी आपके दिल में चुभती ही नहीं है, आपको बेकरार ही नहीं करती, बेचैन ही नहीं करती, ऐसी कुर्बानी में वो रूह नहीं होती जो अदहिया या कुर्बानी का मफहूम लिए होती है। असल कुर्बानी वही है जो दिल को लगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज नेकी का आला दर्जा नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीजों में से खर्च ना करो। और जब सहाबा ने ये आयत सुनी थी तो हर सहाबी जो थे वो अपनी अपनी महबूब चीजों को अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार हो गए थे। एक सहाबी ने अपना बाग दे दिया। हर शख्स की अपनी पसंद होती है, मुख्तलिफ होती है हर शख्स की पसंद। किसी को बाग, किसी को जायदाद, किसी को अपनी किताबें, किसी को अपना घर, किसी को गाड़ी, किसी को इज्जत, किसी को अपना वक्त, और किसी को और अपनी ज्वेलरी। इस तरह मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो अजीज होती हैं। लेकिन ईमान तब आता है जब आप अपनी पसंदीदा चीजें दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान करते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं। इस्लाम ऐसा दीन नहीं जो आपको नुकसान उठाने की कहकर कुर्बानी का कहे, सिवाय इन हालात के जब कुर्बानी की कीमत बहुत बड़ी हो, मसलन शहादत या किसी जान बचाना, जैसा गजवा तबूक का मामला हुआ था, सबके लिए लाजिम था। आम दिनों में हमसे शहादत का मुतालबा नहीं है, बल्कि मुतालबा क्या होता है कि हम अपनी खुदगर्जी को कुछ कम कर लें, सखावत कल्बी कर लें। तो ये इसका मकसद है। फिर एक और चीज जो यहाँ पर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम ये सब इस हकीकत को समझते थे कि ईमान की असल यही है। इस दुनिया में कुछ खो देने पर सब्र जमील तो है, तो वो सब्र जो है उसका अजर जो है वो अल्लाह के पास है, क्योंकि सब्र का कोई अजर बताया नहीं गया हुआ, बेशबहा कहा गया हुआ है। और जो जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनको ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारे सब्र का अजर है। तो क्या जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीज है अल्लाह के लिए, मैं उसको कुर्बान करने पर तैयार हूं। जब वो आप कुर्बानी देंगे तो अल्लाह ने इसके बदले में आपके लिए कुछ बेहतर रखा होगा, इस पर आपका यकीन होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेसोपोटामिया, जो इराक जो था, वो छोड़ा
अल्लाह ने इन्हें मक्का अता फरमाया, शाम अता फरमाया, और ये वही शाम है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी जब वो खंदक खोद रहे थे गज़वा अहज़ाब के लिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। सारा अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी जमीन अपने शोहर की कुर्बत को कुर्बान किया और अल्लाह ने उन्हें वो इज्जत अता की जो दुनिया में किसी औरत को हासिल नहीं हुई। तो उलमा ये कहते हैं कि इंसान का मिशन है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। तो हर कौम, हर कबीला, हर खानदान का एक रूहानी मिशन है। इसी तरह हर खानदान के हर फर्द को भी एक खिदमत सौंपी गई है जो सिर्फ उसी ने करनी, उसी का हिस्सा है। आज इंसानियत की 2/3 तादाद से ज्यादा लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद का अगर बाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम भी तो तौहीद के बाप हैं। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि आज के नौजवानों के मुताले में मुख्तलिफ किस्म के तस्वुरात दाखिल हैं, डार्विनिज्म और इसके अलावा और सोशलिज्म के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें यह माना जाता है कि इंसान इब्तदाई तौर पर मुशरिक था और बुत परस्त था, और वक्त के साथ साथ तरक्की करते हुए तौहीद पर आ गया। जो मोनोथीइस्ट किस्म के जो लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं। मगर हमें मालूम होना चाहिए कि तौहीद इंसानियत के साथ ही शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम, ये सब ना सिर्फ मोहित थे यानी तौहीद पर थे, बल्कि रेडिकल मोनोथियस्ट थे। तो इनका ईमान सिर्फ जुबानी नहीं था, बल्कि इनकी जिंदगी अल्लाह की मुकम्मल बंदगी की अमली तस्वीर थी। जहां तक हम देखें अगर इन चीजों को गौर से, कि बच्चों की नफ्सियात और उनकी जिस्मानी नशोनुमा का जो ताल्लुक है, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की शख्सियत जो होती है वो 7 साल की उम्र तक बन चुकी होती है। और हमें हदीस से भी पता चलता है कि 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज का हुक्म दो, क्योंकि उस टाइम उसकी शख्सियत का काफी हिस्सा मुकम्मल हो चुका होता है, और वो 7 साल तक उसने बुनियादी चीजें जितनी सीखनी होती हैं वो सीखता है, और फिर अब उस आहिस्ता आहिस्ता अपनी अमली जिंदगी में कदम रखने की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन क्या है कि उसके लिए खेल सुनना जो है वो जरूरी होता है, मगर वो बामकसद होना चाहिए। बच्चे को सिर्फ खिलौने देना काफी नहीं, खेल के जरिए इकदार, इखलाक और ईमान सिखाया जाए। बच्चे की जिंदगी में अहम 3 से 13 साल होते हैं, और ये बच्चे के लिए उनकी उसकी ब्रेन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, सोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। और ये वही वक्त होता है जब हमें यकीन, मोहब्बत और एतमाद का बीज बोना है, जो आगे जाकर बच्चे को वालिदैन पर एतमाद करने वाला बनाता है। यानी आज के दौर में तो हमने जान छुड़ाई भी ना, आईपैड, फोन, टैबलेट देकर छोड़ देते हैं और बच्चा बैठा हुआ है जो मर्जी करे। लेकिन ये नहीं है। तो बच्चे की तरबियत पहले भी आसान नहीं थी और आज भी आसान नहीं, और आज बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो गई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से भी हमें पता चलता है कि अपने बच्चों के साथ यानी अपने खानदान के साथ उन्होंने पहले अपने घराने को मजबूत किया। नबूवत के मिशन से पहले सब में मोहब्बत और तरबियत और मौजूदगी हमें नजर आती है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला और बाकी जो उनकी बेटियां थी, और इस तरह अली रज़ियल्लाहु ताला भी, जैद रज़ियल्लाहु ताला, अनस रज़ियल्लाहु ताला, जो भी आपके परवरिश में भी थे, उन सब में हमें ये चीज खास तौर पे नजर आती है। तो सबसे अहम ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से ताल्लुक के बाद आपके खानदान से ताल्लुक। हमें सेहतमंद हदूद यानी हेल्दी बाउंड्रीज भी सीखनी होंगी। नहीं, हाउ टू से नो, नहीं जो कहना है ये भी हमें आना चाहिए कि नहीं को किस तरह से कहा जाए, लेकिन मोहब्बत और शफकत के साथ। तो हम आज थोड़ा सा लेसन को एक पेरेंटिंग के हवाले से भी जानेंगे, क्योंकि हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया जो है उसको हमने कल भी देखा, थोड़ा सा हमने इसको आज भी रिवाइज किया, लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं सीखने वाले वो बहुत अहम हैं। और मैं सारे पॉइंट्स को तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं जितना भी आपके साथ शेयर कर सकी, हम इसको मैं कोशिश करूंगी कि हम इस टाइम में इससे मैक्सिमम जो बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये रवैया, कि उनके बाप ने, उनके वालिद ने इतना बड़ा उनको हुक्म दिया और उन्होंने बगैर किसी चूं चरा के उस हुक्म को मान लिया।
تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تسلیم اور رضا، یعنی کہ وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تسلیم اور رضا کی اعلیٰ مثال ہے، کہ جہاں فرد اپنی خواہشات کو اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور یعنی کہ ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ یہ چیز میرے والد اگر کہہ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے یہ حکم کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دو دو یا تین لیسنس پہلے آپ کو سیکیور اینڈ انسیکیور اٹیچمنٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ان کے اندر ایک سیکیور اٹیچمنٹ تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تعلق مضبوط تھا، لیکن اس مضبوط تعلق کی بنیاد اعتماد اور محبت پر تھی، جو کہ پیچھے سے بیس کر رہی تھی اللہ سے تعلق کے اوپر، توحید کے اوپر۔ ان کو پتا تھا کہ جو میرے والد کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت کہہ رہے ہیں، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، اور یہ اٹیچمنٹ سیکیور تھی کہ اگر میں اپنی جان کی قربانی دے بھی رہا ہوں تو اس کے لیے، اس پر بھی میرے لیے اجر ہے، میں ضائع نہیں ہوں گا، مجھے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ایک جو نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے نا، میں یہ چیز آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر رہی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اپنے آپ سے خود سے اوپر ہو کے سوچنا کہ اللہ کا حکم ہے، اور صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذاتی محبت اور خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا، اور یہی رویہ جو تھا اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ اچھا، اب اس کا ہم متضاد رویہ دیکھتے ہیں، اگر یہ والی چیزیں نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر تسلیم اور رضا نہیں ہوگی تو اس کی جگہ پھر ایگوئزم آئے گی، انا آئے گی، خود پرستی آئے گی، اور خود پرستی جب آئے گی تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو رویہ جو سامنے نظر آتا ہے وہ بغاوت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خود غرض ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اوائڈنس آئے گی، اور وہ اللہ کے حکم سے بچنے کی کوشش کرے گا، جو اس کو ایک بے مقصدیت کی طرف لے کے جائے گی، بیکار زندگی کی طرف لے کے جائے گی۔ پھر انسیکیور اٹیچمنٹ آئے گی، یعنی کہ اس کو یہ شک ہوگا، اس کو یقین ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر نا فکس نہیں ہونے دے گی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ کلم الطیبہ اور کلم الخبیثہ، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کلم الطیبہ کی طرح ہوتا ہے، اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ پیوست ہوتی ہے، اور وہ اس کا رخ جو ہوتا ہے اوپر کی طرف ہوتا ہے، اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو کلم خبیثہ ہے، اس کا انسیکیور اٹیچمنٹ جب ہوتی ہے تو انسان کلم طیبہ نہیں بنتا، اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر جب یہ چیز ہوتی ہے تو انسان کے اندر عدم اعتماد ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ایموشنلی وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، تو کیا اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو کہ ایک نارمل دیکھا جائے تو اس حکم کے سے نقصان ہے، وہ حکم جو ہے وہ غلط ہے، تو کیا اس صورت میں وہ حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر عقل سے یہ سوچیں، عقل والے اس کو دیکھیں، تو یہ چیز تو عقلی معلوم ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے جو رویہ تھا، اس کے پیچھے ابھی جو ہم نے دیکھا کہ رویہ کیا تھا، کہ ان کو اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا اندھی تقلید کی تھی؟ obviously not، انہوں نے بالکل اندھی تقلید نہیں کی تھی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، بے شک وہ حکم جتنا مرضی سخت ہے لیکن وہ اللہ کا حکم تھا۔ تو عام طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو انسان کی نفسیات اور بچے کی نفسیات دیکھ لیں، ہر انسان جو ہے وہ پہلے بچہ ہی ہوتا ہے، تو اس کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، سروائیول انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف سے، مشکل سے بچانا۔ اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، چھوٹا بھی جب ہوتا ہے تبھی وہ پوچھتا ہے، وہ اس کے اندر کریوسٹی ہوتی ہے، ہر چیز کو جا جا کے اس نے دیکھنا، ہر چیز کے اندر اس نے انگلی ڈالنی ہوتی ہے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ٹین ایج میں جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سوال اٹھانے کا ایک جو ہے وہ چیز آتی ہے کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اس کے اندر یہ والی چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہ اس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کوئی بھی رویہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا،
انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کی پیشکش کو قبول کر لیا، جو جو اگر ایک نفسیاتی سائنس جسے کہتی ہے، ایک نفسیاتی عام طور کے اوپر عام انسانی جبلت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ غیر معمولی رویہ ہے، لیکن یہ خلاف فطرت نہیں تھا، یعنی فطرت کے خلاف نہیں تھا، یہ ایک اعلیٰ فطرت اور فطرت سلیم جو ہے نا، یہ اس کا ایک کمال تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا جو رویہ ہے وہ تربیت اولاد کی بہترین مثال ہے۔ تربیت یعنی کہ بچے ویسا ہی بنتے ہیں جیسا وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رول ماڈل کے طور پر اپنا اعتماد، ایمان اور قربانی سکھائی۔ اسماعیل علیہ السلام نے والد کی روحانی بصیرت کو اپنی قیادت، اخلاقی قیادت کے طور پر دیکھا اور سیکھا۔ پھر کیا ہے کہ بچے جو ہیں ان میں مورل ریزننگ جو ہے والدین کی ماڈلنگ سے بنتی ہے۔ مورل ریزننگ یعنی کہ صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے وہ والدین کی ماڈلنگ سے بنتی ہے۔ تو والدین اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی رضا سب سے اہم ہے، صبر، اطاعت، ایثار جیسی صفات اپنے پیرنٹس میں دیکھی، تو یہ ان کی جو نفسیات تھی وہ ڈیفالٹ، ان کا جو موڈ تھا نفسیات کا وہ آٹومیٹیکلی ویسا بلٹ ہو گیا، اور وہ ہائر سیلف کے اوپر چلے گئے اپنی ارلی سٹیج پر ہی، اور وہاں سے ان کی جو تھی اٹیچمنٹ بھی سیکیور تھی، اور ان کے اندر کوئی خود سری اور وہ نہیں آئی۔ ہم اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ان کے اندر خود سری کیوں نہیں آئی، یہاں والدین اگر کوئی حق تلفی کرتے ہیں اکثر تو وہ اولاد بولتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیوں اپنے والد کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اور ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ وہ بلائنڈ اوبیڈینس نہیں تھی، شعوری اطاعت تھی۔ یعنی کہ اگر جب ہم اسماعیل علیہ السلام کی جو سورہ الصافات میں جو ذکر آتا، آیت آتی ہے نا، یا آبتف علما تو عمر، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہمیں واضح طور کے اوپر یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے اپنے والد کو کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، یعنی کہ ان کو اس چیز کا پوری طرح ادراک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو یہ حکم دیا ہے، لہٰذا وہ بلائنڈ اوبیڈینس نہیں تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی میں اطاعت کر رہا ہوں، لیکن میرے والد کا کردار ایک نبی ہے، وہ ایک وسیلہ ہے درمیان میں۔ پھر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر والدین غلطی کریں، غلطی یا ہمیں جس طرح سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اگر والدین تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم ہی نہیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک جو ہوگا وہ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہے کہ اس میں اگر والدین کی بات ہم نے ماننی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اگر وہ ظلم کے اوپر مبنی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اسرٹیونیس اپنائی جائے گی، لیکن سافٹ اسرٹیونیس ہوگی، ادب کے ساتھ اصولی موقف جو ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے والدین اور اولاد کے تعلقات۔ ہم جب یہ والا رول جو ہوتا ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور ان واقعات کو اکثر جب ہم دہراتے ہیں، تو ہم میں سے ہر پیرنٹ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی طرح اوبیڈینٹ ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر وہ ابراہیمی صفات جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے پہلے جو ہم نے کرنے والے کام تھے، جو ہم نے اپنی بھی گراؤنڈ تیار کرنی تھی، اپنے دل کے اندر وہ ساری کھیتی اگانی تھی، وہ کی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم نے بچے کے ارلی جو ایئرز ہیں اس کے اندر بھی وہ پوری گراؤنڈ ہم وار کی ہے کہ نہیں۔ ونس کیا ہوتا ہے جب جیسے ہی بچہ ذرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ بولنا شروع ہوتا ہے، پھر ہمیں اس ٹائم احساس ہوتا ہے کہ او ہو یہ تو کوئی بیج جو ہے وہ غلط لگ گئے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم پھر ہم وہ والے رولز اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں شروع میں کرنے چاہیے تھے، تو پھر اس ٹائم وہ والی چیزیں جو ہیں وہ کارگر نہیں ہوتی۔ تو بچے کو بلائنڈ اوبیڈینس نہیں سکھانی، بلکہ اسے ریزنڈ اوبیڈینس سکھانی، یعنی کہ ریزننگ پر لے کر آنا ہے۔ عقیدے اور عمل میں فرق بتائیں۔ والدین غلط بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھائیں کہ امی اور ابو آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ مکالمہ یعنی ڈائلاگ کروائیں، ان سے بات کریں، اس کا کلچر بنا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر ہم بلائنڈ اوبیڈینس کرتے ہیں تو نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ انسان کی اندر مختلف طرح کے جو ہیں وہ بچوں کے اندر جو ہیں وہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
फिर क्या है कि उसमें अक्सर क्या होता है कि जिस तरह से अगर हम रीजनिंग का तरीका नहीं सिखाते बच्चों को, तो अंधी इताअत में बच्चों के अंदर नाइंसाफी को कबूल करने की एक चीज डेवलप हो जाती है, और वो उनका दिल किसी भी किस्म की अगर कोई नाइंसाफी कर रहा होगा उसमें उनको वो चीज महसूस ही नहीं होगी, और कहेंगे कि दुनिया में तो इस तरह ही होता है। इसी तरह ही अगर उनको खौफ के ऊपर मबनी इताअत यानी सिखाई जाएगी, और उनको बस कहा जाएगा कि बस तुमने यही करना है, रीजन नहीं दिया जाएगा, तो उनकी सेल्फ स्टीम कमजोर रहेगी। वो कभी भी किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं ले सकेंगे। और अगर उनके अंदर हमने सवाल करने की सलाहियत को ही दबा दिया, तो फिर वो मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि वो दो नंबर तरीके इख्तियार करेंगे, अपनी जरूरत पूरी करने के छुप के कोई काम कर लेंगे, कोई गलत तरीके से किसी की हक तलफी करेंगे और अपनी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करेंगे। वो क्योंकि ओपन होके वो चीजें जो है ना वो नहीं कर सकते, तो वो अपनी जो जरूरियात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको किसी और रास्ते से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम अपने जब माशरे में देखते हैं, हमारी जो एजुकेशनिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जो हमें बताते हैं, हमारे माशरे में अ, आजकल के माशरे में भी, और अगर हम अपनी एक और दो जनरेशन पीछे को देखें, तो वालिदैन अपने ये वालिदैन हो जाएं या वैसे कोई बड़े हो जाएं, वो अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। और गलत और सही वो जो भी करें, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना बस इस्माइल की तरह जो है ना सरेंडर ही करके रहे। और क्या होता है उससे, अमूमी तौर के ऊपर बच्चा जो होता है ना अल्लाह ताला की इताअत से भी निकल जाता है। और शुरू में तो वो लगता है कि वालिदैन की इताअत में आ गया है, लेकिन असल में क्या होता है, जब अल्लाह की इताअत से निकलता है तो किसी न किसी रोज वालिदैन की इताअत से भी निकल जाता है। और ये रवैया जो होता है, असल में क्या होता है, बातिल नजरियात को तश्कील देता है। बज़ाहिर नाम के मुसलमान होते हैं, लेकिन अंदर से अकीदे जो होते हैं वो बिगड़ चुके होते हैं। जुल्म को बढ़ावा देता है, बुजदिली, कम हिम्मती, खुद गर्जी को पालता है, हक तलफी बढ़ाता है, रिश्तों का एहतराम खो देता है, और सबसे बढ़कर ये कि तौहीद से निकल जाता है। तो वो वालिदैन की नजायज अथॉरिटी और इस्माइली फर्माबरदारी का गलत मफहूम जो है, ये हमारे माशरे में किस तरह राइज है। मसलन हमारे माशरे में बाज वालिदैन कहते हैं कि हमने जो कहा है वही करना है, खा वो सही हो या गलत हो। जैसे इस्माइल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, तुम भी मानो। अब ये रवैया गलत है, आप गलत चीज के ऊपर गलत लॉजिक दे रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अव्वलन तो अंधी इताअत नहीं की थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म को माना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जुल्म का मुतालबा नहीं किया था, वो तो अल्लाह की तरफ से हुक्म था, उनकी कोई जाती ख्वाहिश नहीं थी। इस्माइली रवैये की उम्मीद करने के लिए इब्राहिमी रवैया पहले है, और आगाज अपने अंदर के बुतों को गिराने से होगा। अगर वालिदैन अपनी अना ख्वाहिशात या जुल्म को अल्लाह का हुक्म बनाकर पेश करेंगे तो ये शिरक है, यानी अल्लाह की इताअत के मुकाबले में वालिदैन की इताअत। जब वालिदैन जुल्म का मुतालबा करते हैं और बच्चे को खामोश रहने का कहते हैं, तो क्या होता है, इसमें क्या नुकसानात होते हैं? इसमें क्या नुकसानात होते हैं कि वो एक तरह की जो अथॉरिटी वर्शिप है, कि अब जिस बच्चा कमजोर है और उसको जो एक अथॉरिटी नजर आ रही है, वो उसकी जरूरियात जिंदगी जो है उस अथॉरिटी से वाबस्ता है। तो वो इसके अंदर एक चीज ये डेवलप हो जाती है कि मैं डिपेंडेंट होऊंगा, मुझे उसकी खुशामद करनी है, मुझे उसको एक अथॉरिटी को एक बड़ा बना के रखना है, और उसको उसको इस लेवल पर रखना है। तो वो बड़ों की बात को हमेशा जो होगा ना वो कहेगा ठीक है, इनको यस यस करते रहो, यस मैन बन के रहेगा। और वो कहेगा कि मुझे बस अपनी जरूरत पूरी करनी है, बस मैं इनको जी जी करता रहूं, और चाहे मैं ये गलत हो या सही हो। तो ये अंधी तकलीद जो है ना, ये तौहीद की रूह के खिलाफ है। फिर क्या होता है कि अखलाकी असूलों की जो है ना वो उसका बिल्कुल गला घोंट दिया जाता है, वो बिल्कुल मॉरली जो है ना वो चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं और जुल्म को हक कहना जो है ना वो सिखा दिया जाता है। ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं, इनडायरेक्टली आप बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं, जुबान से आप बेशक ये ना कह रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये बच्चा ये सीख रहा होता है। हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाता। किताबों का इल्म कुछ और होता है, और जो उसको नजर आ रहा होता है वो कुछ और होता है। फिर एक होता है लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी कि बच्चा जो है वो, एक तो होता है ना कि हेल्पलेसनेस के कोई इंसान बेबस है, कोई ऐसा मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड है कि वो बिल्कुल ही बेबस है। तो वो तो एक चीज है जिसका शायद उस इंसान को खुद भी इदराक नहीं होता। लेकिन लर्नड हेल्पलेसनेस ये होती है कि
وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی سوسائٹی میں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتا اس کے اندر، کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اس کی نہ آواز سنی جاتی ہے نہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کے اندر نا ایک بے بسی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری آواز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں اگر بولوں گا بھی تو کس نے کون میری بات سن لینی ہے، تو وہ بزدلی اور کم ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل جو سپریسنگ پیرنٹس ہوتے ہیں، جو بہت ڈومینیٹنگ اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں اتھارٹیٹیو، وہ بچوں کو ایموشنل ریپریس کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے جذبات کو دبا دیتے ہیں، اور جب جذبات دبائے جاتے ہیں تو وہاں سے ڈپریشن، ایگزائٹی، پھر خود اعتمادی میں کمی، سیلف اسٹیم لو، سیلف اسٹیم جیسے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ اپنے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لے آتی ہیں، جیسے خود غرضی، سیلفشنس، کیونکہ انسان کے اندر اپنی جائز خواہشات پوری کرنے کی تو ایک ارج ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ بزدلی اور کم ہمتی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، تو وہ اوپنلی سامنے جا کے وہ اپنی جائز طریقے سے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہمت نہیں پاتا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ خود غرضی آ جاتی ہے، ظلم دیکھ کے بھی خاموش رہا جاتا ہے، ان کے اندر صرف یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے مفاد کے لیے بے شک سچی چیز کو بھی قربان کر دو، کوئی اگر کسی کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے اس کو بھی قربان کر دو، اور حق تلفی کا کلچر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ بچوں کو ظلم پر خاموش رہنے کی جو تربیت دی جاتی ہے تو کل کو وہ خود بھی ظلم کرنا یا برداشت کرنا سیکھتے ہیں، یہ ایک چیز اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال پر رہنے کا کہا ہے، جو امت محمدی ہے، جو ہماری شریعت ہے، وہ میانہ روی سکھاتی ہے، متوسط، ہر چیز میں اعتدال کو اپنانا۔ تو جب ہم ایک ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ظلم کرنے والے ہیں اگر، تو پھر اس اگر کوئی ہم سے کوئی زیادہ ہمیں کوئی اتھارٹیٹیو یا کوئی ظالم شخص ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم دوسری طرف بھی ایکسٹریم رویے پہ جائیں گے، رویہ برداشت کرنا، ہم مڈل میں کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اگر مڈل میں آنا ہو تو اس کے لیے پھر بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو پہلے اس اپنا کانشیس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ ہاں وہ میں پہلے بھی میں نے وہ غلط کیا، اور میں اب بھی غلط کر رہی ہوں، اور اب مجھے صحیح اپنے اندر سے جو میرے اندر وہ ایک جو تہوں پہ تہیں چڑھ جاتی ہیں ہمارے سوچ کی اور ہمارے یقین کی، ہمیں وہ گریں اور وہ تہیں ساری بنیادیں جو نا وہ کھودنی پڑتی ہیں اور نئی بنیادیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ تو اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، انکانشیسلی توحید سے بھی انحراف ہو جاتا ہے، والدین کے غلط فیصلوں پر چپ رہنا بندوں کی بندگی ہے جو توحید کی روح کے خلاف ہے، اور یہ ساری چیزیں انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں دیکھیں گے، اور ستم یہ ہے کہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہے کہ والدین کا ہر بات میں جو یہ رویہ ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میری بات مانو، جو کہہ دیا بس وہی کرو، اس سے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ جو اس کی صلاحیت جو تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہے، سوال کرنے کی، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، یہ چیز مر جاتی ہے۔ ظلم پر خاموش رہنے سے جو ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے وہ غلط کو صحیح ماننا سیکھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے اور اسی طرح ہی راستے نکلتے ہیں۔ صرف والدین کی خوشی کو بچہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور اس وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے وہ پیپل پلیزر بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی ایک فٹ میٹ کی طرح گزرتی ہے، اور اس کی اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ نہیں کروا پاتا۔ حق پر آواز نہ اٹھانا جو ہے نا اس کو بزدلی اور کم ہمت جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دینی لحاظ سے جو ہے اس چیز کا ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے۔ دینی لحاظ سے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ توحید کا نقصان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے صرف اللہ کی اطاعت، اور ہر حکم اس قانون کے تابع ہے۔ کوئی انسان اگر چاہے والدین ہو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کہے تو اس کی اطاعت نہیں ماننی۔ پھر اس میں کیا ہے، بچوں کو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہم اس میں بچوں کو کسا سکھا سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ہمیں ظلم پر جو ہے وہ خاموش نہیں رہنا، تو ہمیں بچوں کے سامنے ان چیزوں کی کو خود جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنا ہوگا۔ وہ
रोल मॉडलिंग जो होगी हमें खुद करनी होगी। उस तौहीद को हमें अपने अंदर खुद रास्ख करना होगा। उस उन बुजदिलियों को, उन खौफ को, और जो चीजें हमने अपने अंदर डाली हुई हैं, हमने पहले उनका खुद मुकाबला करना होगा। वो रास्ते आप खुद बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चे आपको देखकर उस पर चलेंगे। अच्छा, इन चीजों से जो गलत रवैये होते हैं वालिदैन के, उससे बच्चों के अंदर जो बिगाड़ पैदा होते हैं उनमें क्या है? जिस तरह नफसियाती तौर के ऊपर जो होता है, बच्चे वो हो जाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम जो होती है लो हो जाती है, यानी कि उनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है। फियर बेस्ड पर्सनैलिटी, यानी कि वो खौफ के ऊपर उनका मिजाज होता है, डरपोक होते हैं। उनके अंदर कोई भी इनिशिएटिव लेने की जो है ना वो हिम्मत नहीं होती। होता है ना, कोई पहला कोई कदम उठाना वो उनमें नहीं होती। फिर क्या होता है कि वो बेबसी का उनका मिजाज बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले से बताया है। और दबी दबी हुई उनकी शख्सियत होती है, अपने जज्बात को दबाते हैं, सही जगह के ऊपर वो जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, और इस उस वजह से क्या होता है समटाइम्स कि गलत जगह के ऊपर गलत जज्बात का इजहार होता है और उससे मसाइल पैदा होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी गौर व फिक्र जो है उसके उनके अंदर वो सलाहियत खत्म हो जाती है, और फिर इमोशनली मसाइल का शिकार होते हैं, इमोशनल नमनेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के मसाइल होते हैं। सोसाइटी माशरती तौर के ऊपर उनका क्या बिगाड़ आता है? उसमें ये होता है कि जालिम का साथ देना, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती, तो वो हर बड़े को जो है ना अपना खुदा मान लेते हैं। जो भी जरा रोब डालता है या जो भी कोई बड़ा बनता है तो वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो इनके अंदर ये चीज होता है कि ठीक है, जो बड़ा है ना वो सही है, जो भी वो कह रहा है उसको मान लो। रिश्तों के अंदर जो है ना एक मसनूईपन आ जाता है, अखलास नहीं रहता। मोहब्बत के बजाय जो है जो ताल्लुकात होते हैं वो खौफ पर मबनी हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि नाइंसाफी जो है वो एक नॉर्मल, एक उनकी नॉर्मल एक सोच बन जाती है। और वो कहते हैं कि बड़े इस तरह करते हैं, ऐसा ही होता है, छोड़ दो, जो वालिदैन कर रहे हैं ठीक, वो ठीक ही होगा। वो किसी भी तरह से ना उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। और फिर क्या होता है, यूजुअली ऐसे लोगों के बच्चे और उनके जो ताल्लुकात होते हैं, जो उनके अंडर होते हैं बच्चे, और उनके ताल्लुकात भी आपस में उस लेवल के बनते ही नहीं है, दिल का ताल्लुकात नहीं होता, सिर्फ फराइज की हद तक रह जाते हैं, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। मुफाद परस्ती होती, क्योंकि बुजदिली आती है तो उससे मौका परस्ती और मुफाद परस्ती भी आ जाती है। हर बुजदिल इंसान जो है उसके अंदर जो है ये चीज की आ जाती है, खराबी आ जाती है अक्सर। और स्पिरिचुअल जो बिगाड़ है वो क्या होता है? इसमें बहुत खतरनाक जो चीज होती है, दीन से नफरत पैदा होनी शुरू हुई थी, क्योंकि बच्चा अपने वालिदैन को एज अ रोल मॉडल देख रहा है। अब वो उसको जबरदस्ती रोक टोक डांट डपट, और यहाँ पर जो डबल हमारे स्टैंडर्ड आते हैं कि हाथों में हमने तस्बीहें पकड़ी हुई है, नमाज रोजा हम कर रहे हैं, और बाकी सारे हम वो रिचुअल से पूरे करें, मगर अखलाकी और मामलाती जवाल इस कदर है कि बच्चा जो है वो इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और उसका नतीजा क्या होता है? अल्लाह से बदगुमानी, कि अगर अल्लाह ने वालिदैन को इतना जालिम बनाया तो फिर अल्लाह भी सख्त होगा। शऊरी इबादत की बजाय रस्म परस्ती के ऊपर ज्यादा हम चले जाते हैं, हमें वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। फिर वही बात है कि मजार और इस तरह की चीजें, क्योंकि वो वहां से आपका एक वो कनेक्शन ही नहीं होता, दिल से हम इबादत नहीं करते, या डर डर के सहम सहम के करते हैं। मसलन हमने अगर किसी की खिदमत भी यहाँ करनी हो, या तो उसमें भी हम कहते हैं अच्छा फलान ने हमें इतने, मेरे बेटी को शादी पे इतने पैसे दिए थे, तो अब उसके बेटे की शादी है तो मैं अब कितने ही दूं या उससे थोड़े से ज्यादा दे, तो हम ये नहीं, इन्हीं चीजों में हम उन चीजों को देखते हैं। तौहीद का बिगाड़ जो है वो आ जाता है, निफाक, हिपोक्रेसी, ये एक बहुत ज्यादा जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर तो बहुत। हमारे घर जो है ना वो इन चीजों के इसके अड्डे बने हुए हैं, हम घरों के अंदर से अनकॉन्शियसली ये चीजें सिखा रहे हैं बच्चों को। बाहर से अच्छा बनना, अंदर से जले कूड़े रहना, और खिलाफ दूसरों के खिलाफ चीजें उगलते रहना। तो इन चीजों को ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस्लाह की जरूरत है, जो बड़े हैं उनको इस्लाह की जरूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, खुद से अपने आप से सवाल करें कि मैं जो कुछ ये कर रहा हूँ वो ठीक है क्या? ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं इंसाफ कर रही हूँ? क्या मैं अपनी जिद को अल्लाह का हुक्म बनाकर पेश कर रही हूँ? और अपने दीन के मामलात में देखें कि हमारा दीन हमें पेरेंटिंग के लिए कहाँ कहाँ हमें गाइडेंस देता है। हमारे दीन के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस जो है ना हमें दी गई हुई है। बच्चों की इस्लाह जो वो भी जरूरी है, असर्टिवनेस सिखाने, यानी कि हक पे उनको डटना सिखाएं, अदब से हक से बात करना सिखाएं।
दीन की सही पिक्चर पेश करें, और बच्चों के जज्बात को इम्पोर्टेंस दें, उनकी बात सुने, और उनको उनके साथ ऐसी उनको ऐसे लोगों से मिलाएं जो उनके रोल मॉडल बन सके, जहां से वो सीख सकें। ऐसे उनके साथ बैठ के ऐसी चीजें सिखाएं, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना सिखाएं कि काबिले वालिदैन काबिले एहतराम है, मगर अल्लाह की जो है अल्लाह से आगे नहीं है। और ये चीजें बच्चों को सिखाएं, वालिदैन बच्चों को बादशाह बनना ना सिखाएं, उनको रहबर टॉर्च बेरर बनना सिखाएं, कि तुमने अल्लाह के मखलूक की जो है रहनुमाई करनी है, गाइडेंस करनी है, उनकी खिदमत करनी है, अपना तुमने हिस्सा डालना है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें कि जो कुछ हैबिट्स हैं जो सक्सेसफुल पेरेंटिंग होती हैं, उसमें क्या मोटी मोटी सी जो हैबिट्स क्या होती है कि अल्लाह के हुक्म को बुनियाद बनाते हैं, अपनी मर्जी को नहीं। बच्चों के इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको कहते हैं कि उनसे पूछते हैं कि उनसे राय लेते हैं, उनको अपनी बात करने का मुकम्मल मौका देते हैं, खुद अपना रोल मॉडल बन के दिखाते हैं, जो कहते हैं खुद भी करते हैं। फिर यह है कि डायलॉग की फजा बनाते हैं, हुक्म की फजा नहीं बनाते, सवालात की को अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों की बात नहीं काटते। हक पर डटना सिखाते हैं, लेकिन जुल्म पर खामोश रहना नहीं सिखाते। यानी कि असूलों पर नरमी नहीं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन असूल असूल है वो जो दीन के हिसाब से है। मांगना सीखना, यानी अगर गलती हो जाए तो माफी का रवैया दिखाते हैं फौरन, कि अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं। दीन को मोहब्बत से सिखाते हैं, हुक्म हुक्म से, जबरदस्ती से, डांट डपट के नहीं सिखाते। बच्चों के अंदर जो है खुद एतमादी पैदा करते हैं, और उनको यकीन दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, उनके जो विजन्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि तुम्हारा शौक क्या है, हम तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनको दुआ देते हैं। और जो अनसक्सेसफुल या टॉक्सिक या कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं उनका क्या रवैया होता है कि हम बड़े हैं, हम जो चाहें वो करें, और बस हमारी बात सुनो और चुप रहो, और तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम खामोश रहो। और अगर कोई गलत भी कर रहे हैं तो बस ठीक है, हमें पता है ज्यादा, तुम ज्यादा हमें पढ़ाने की कोशिश मत करो, हमने भी पढ़ा हुआ है। और अपनी गलती कभी भी तस्लीम नहीं करते, और दीन के नाम पर जुल्म करते हैं। बाज दफा दीन के अहकाम को ही इस तरह तोड़ मरोड़ देंगे कि बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, बच्चों की जो इमोशंस हैं उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, और उनका मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हें तो बस हर वक्त एक ही सोच आती रहती है, तुम्हें कोई और बात नहीं जहन में, ये तुमने क्या बात कर दी है, बिल्कुल फजूल है। सख्ती से और खौफ पर मबनी तबीयत उनकी तरबियत होती है। जुल्म के ऊपर जो है खामोश रहना सिखाते हैं, भी चुप रहो, तुम्हें क्या जरूरत है ये कहने की, कल को हमारे गले वो चीज पड़ जाएगी, तुम्हें ज्यादा खिदमत करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की डायलॉग उनके साथ बोले जाते हैं। फिर ये कि अपनी नाकामियों का बोझ जो है ना वो बच्चों पर डालते हैं, अपनी बदकिस्मती जो उन्होंने बनाई होती है उसका इल्जाम बच्चों को देते हैं। और ये चीजें जो हैं ये बच्चों के अंदर जो है फिर मजीद जो है वो खराबियां लेकर आती हैं। थोड़ा सा हम ये देखेंगे, टाइम थोड़ा रह गया, सिर्फ इसमें एक चीज मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि ऐसा रवैया होता क्यों है जो पेरेंट्स जब करते हैं, क्या वो जानबूझ के कर रहे होते हैं या ऐसा होता क्यों है। उसके उसकी वजह भी ये होती है कि अक्सर औकात ज्यादातर पेरेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि वो ये रवैया क्यों कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो एक गलत रवैये को दोहरा रहे होते हैं। ये एक चेन रिएक्शन होता है जो उनके साथ हुआ होता है, उसको वो दोहरा रहे होते हैं, जिसको हम जनरेशनल ट्रॉमा या ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा भी कहते हैं। कि नस्ल दर नस्ल खानदानी सदमे और तकलीफें, और वो जो मुश्किलात जो हैं या वो सदमात जो है ना वो कन्वर्ट होती जाती हैं। और वालिदैन ने खुद भी बचपन में सख्ती, बेहिसी और हक तलफी देखी होती है, तो वो वही चीज आगे कर रहे होते हैं। वो कहते हैं भी हमने भी डंडे खाए थे, तुम भी बर्दाश्त करो, तुम भी सहो, हम तो अपने वालिदैन के आगे हमने भी नहीं बोला, तुम भी ना बोलो। तो लाशूरी तौर के ऊपर ना वो ये चीज जो है ना वो मुंतकिल कर रहे होते हैं। और क्योंकि उनको खुद सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं होती। लेकिन क्या है कि जब बच्चे जो लोग दीन को समझे हैं, पढ़ते हैं, जो जानते हैं, फिर वो इन चीजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब वो तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको काफी चैलेंजेस का सामना पड़ता है, क्योंकि ये रवायात जो होती हैं तोड़ना आसान नहीं होती।
इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरह हमें कुरान से भी इसका सबूत मिलता है ना, जब जैद बिन हारसा ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह को जब तलाक दी थी अल्लाह के हुक्म से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करना था उनसे, तो ये कितना बड़ा टैबू था वहां पर कि वो इतना आसान नहीं था, और अल्लाह ताला ने खुद इंटरवीन किया था, और अल्लाह ताला ने खुद उनका निकाह जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैनब रज़ी अल्लाह से पढ़ाया था। तो कल्चरल जो चीजें होती हैं, ये जो ट्रॉमास होते हैं, इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हिकमत का मामला, और हिकमत के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपने दीन की पूरी पूरी फहम होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप समझें उसको, और इन चीज़ों को अपने दीन का हिस्सा बनाएं। यहाँ पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी अनाउंस करूं कि पेरेंटिंग के हवाले से हमारे पास जो मॉडल्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बेहतरीन मॉडल अता किए हैं, हदीसों से भी मिलते हैं। और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अपनी जुल्हिज्जा की क्लासेस के बाद एक भरपूर सेशन रखेंगे, और आप लोग उसमें ज़रूर अपना जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ बता दूं, हमारे पास जो मॉडल्स आते हैं पेरेंटिंग के, जैसा कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मॉडल ये है, फिर एक मॉडल हमारे पास यकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का है, फिर एक मॉडल हमारे पास जिक्रिया अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम का आता है, फिर मरियम अलैहिस्सलाम और जिक्रिया अलैहिस्सलाम का आता है, लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों का एक मॉडल आता है, फिर अजीज़ मिस्र और यूसुफ अलैहिस्सलाम का आता है, नूह अलैहिस्सलाम और उनका बेटा, और इस तरह फिरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद का। ये हमारे पास मॉडल आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मॉडल्स हैं। ये सारे मॉडल्स जो है ना, इन सब में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना हमारे लिए पॉइंट्स हैं पेरेंटिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का अनकरीब हम कुछ सेशंस रखेंगे जो खसूसी तौर के ऊपर हमने पेरेंटिंग के हवाले से ही तैयार किए हैं। करने कुछ का काम हो चुका है और कुछ इंशाल्लाह ताला अभी इस प्रोसेस में है। तो वो जैसे ही वो हमारा प्रोसेस मुकम्मल होगा तो हम ज़रूर इस चीज़ को रखेंगे, और उम्मीद है कि आप सब लोग भी हम हमारे साथ, आपको भी इससे भरपूर फायदा होगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पर इख्तिताम होती है। दुआओं में याद रखिएगा और तकबीरात ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सीखने और सिखाने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।